Hello students, welcome back to our channel again. Today we are here with the fourth part of chapter Challenges of Nation Building. In last class we have discussed basically the consequences of partition. That what were the results of partition? We have seen that there was violence only in both of the country, and the base for the violence was religion only. People were feeling themselves insecure in their own country. People were treating them just like aliens on their own lands. Everywhere there was mass killing only, and there was, you can say, there was hate in the hearts of people. Nothing was extra. So today we are going to do next from that. Yesterday this page was left, that Mahatma Gandhi sacrifice. What did he do for the nation? Because there was two nation theory, right? And on the behalf of two nation theory there should be two nation, and the base should be religion. If anyone is Hindu, he or she should stay in India, and if anyone is following Muslim religion, then they will have to shift to Pakistan. But the people like Mahatma Gandhi, they were feeling that India should not got be partitioned, and especially on the basis of religion there should be no any kind of division. And here we are going to read the views and sacrifice of Mahatma Gandhi. So on the 15th of August 1947, Mahatma Gandhi did not participate in any of the Independence Day celebration. जब 15 अगस्त का सेलिब्रेशन हुआ 1947 में, महात्मा गांधी ने किसी में भी पार्टिसिपेट किया ही नहीं. And where was he? He was in Kolkata, in the areas which were torn by the gruesome riots between the Hindus and Muslims. और वो कहां पर थे उस टाइम पे जब सारी कंट्री इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रही थी? He was in Kolkata, where there were riots and you can say violence only between these two groups, and he was trying to console people. He was saddened by communal violence and disheartened that the principle of ahimsa and satyagraha that he had lived and worked for had failed to bind the people in troubled times. और उनको सबसे बड़ा जो परेशानी थी, सोरो था, that was of that thing, that because of two aspects, because of two principles, we were able to get freedom. और वो दो प्रिंसिपल्स आपके कौन से थे? अहिंसा एंड सत्याग्रह, मतलब नॉन वायलेंस. और एक सत्याग्रह मतलब क्या होता है? सत्याग्रह मीन्स होता है इफ यू आर फाइटिंग फॉर ट्रूथ, if your goal is to get the truth, then there is no needs of weapons to fight with your enemy. And a real satyagrahi, what he or she will do, they will tolerate every cruelty against them, but they will not adopt the path of violence, because it is believed that with the help of satyagraha we are able to change the mind and hearts of the other people. That is satyagraha. मतलब सत्याग्रह में बेसिकली क्या होता है? देखो, सत्याग्रह इट मीन सत्य के लिए आग्रह, यानी आप ऐसी सिचुएशन की बात करते हो जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी ट्रूथ होता है, आप जो मेथड यूज करते हो वो भी हमेशा ट्रुथ पर बेस्ड होते हैं, नॉन वायलेंस पर बेस्ड होते हैं. और इसमें क्या बेसिकली फोकस होता है कि अगर आपका गोल, आपका ऑब्जेक्टिव अगर ट्रुथफुलनेस पर बेस्ड है तो आपको अपने एनिमी से फाइट करने के लिए वेपन्स की जरूरत नहीं है. और एक दिन आएगा जब आपके एनिमी को भी फील होगा कि हमने गलत किया, एंड दैट डे दे विल बी रिग्रेटिंग फॉर दैट. तो सत्याग्रह वही मेथड है कि आप अपने एनिमी का माइंड हर्ट कैसे चेंज कर सकते हो विदाउट यूजिंग ऑफ वोलेंटिक एस्पेक्ट. बट यहाँ पे महात्मा गांधी के दोनों प्रिंसिपल्स फेल हो गए थे. ऑल्दो वी वर एबल टू गेट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स बाय दीज टू मेथड्स, but in our own country we were not able to apply these two instrument or two principles. And just because of that Gandhi ji went on to persuade the Hindus and Muslims to give up violence. इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट भी की हिंदूज और मुस्लिम को कि आप वायलेंस को छोड़ दो. His presence in Kolkata greatly improved the situation, and the coming of independence was celebrated in a spirit of communal harmony with joyous dancing in the streets. और लोगों ने क्या किया? जो कम्युनल फीलिंग्स थी उन सभी को साइड में रखा और कंट्री के इंडिपेंडेंस को बड़े जॉय के साथ सेलिब्रेट भी किया.
Gandhiji's prayer meeting attracted large crowds, but this was short-lived as riots between Hindus and Muslims erupted once again and Gandhiji had to resort to a fast to bring peace. इसीलिए फिर क्या हुआ, बट जो पीस मेंटेन हुई दैट वाज फॉर दी शॉर्ट टाइम पीरियड ओनली, क्योंकि जल्दी से दोबारा फिर क्या हो गया, वायलेंस रिलीजन के नाम पे फिर शुरू हुई और महात्मा गांधी को क्या करना पड़ा, रिसोर्ट टू अ फास्ट टू ब्रिंग पीस, यानी उनको एक फास्ट व्रत जिसको बोलते हैं आमरण अनशन टाइप में, वो करना पड़ा कंट्री में पीस को मेंटेन करने के लिए. एंड आफ्टर दैट next month Gandhi moved to Delhi where large scale violence had erupted. अब कोलकाता में किसी तरीके से थोड़ी बहुत सिचुएशन कंट्रोल में आई, so he went to Delhi to control the situation and he was deeply concerned about ensuring the Muslims should be allowed to stay in India with dignity as equal citizen. और बेसिक फोकस क्या था, that India is not the country of Hindus only. If any Muslim is staying in India, then he or she should have a right to stay with complete dignity and he or she should have equal right as of Indian citizen. And he was also concerned about the relation between India and Pakistan. He was unhappy with what he saw as the Indian government decision not to honor its financial commitments to Pakistan. और वो क्या चाह रहे थे कि हमारे जो रिलेशन है ना पाकिस्तान के साथ वो भी अच्छे होने चाहिए, और वो जो हमारा डिसीजन था कि जो हमने फाइनेंशियल कमिटमेंट हमने ऑनर नहीं किए थे पाकिस्तान के, उससे भी वो कहीं ना कहीं अनहैप्पी थे. With all this in mind, he undertook what turned out to be his fast in January 1948. As in Kolkata, his fast has a dramatic effect in Delhi. और कोलकाता की तरह दिल्ली में भी उनके फास्ट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा. कम्युनल टेंशन एंड वायलेंस रिड्यूस्ड, और इतना इफेक्ट पड़ा कि जो कम्युनल टेंशन थी, वायलेंस थी, वो कहीं ना कहीं कम हो गई. मुस्लिम ऑफ दिल्ली एंड सराउंडिंग एरियाज कुड सेफली रिटर्न टू देयर होम्स. और जो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में ये था ना कि मुस्लिम है वो अपने प्लेस पे सिक्योरली जा नहीं सकते, सो दे वर मूविंग टू देयर प्लेस, देयर होम्स इन अ सिक्योर मैनर. And the government of India agreed to give Pakistan its dues. और गवर्नमेंट जो थी हमारी, जो गवर्नमेंट बनी थी, उसने भी अग्री किया कि हम पाकिस्तान को उसके ड्यूज रिटर्न कर देंगे. So this was the impact of Mahatma Gandhi over the politics of our country. Along with that, Mahatma Gandhi's action were however not liked by all. लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में जो सिर्फ ये चाहते थे कि इंडिया सिर्फ हिंदू के लिए बचा रहे और पाकिस्तान सिर्फ मुस्लिम के लिए, तो उन लोगों ने इन डिसीजंस को पसंद नहीं किया. एक्सट्रीमिस्ट इन बोथ द कम्युनिटीज ब्लेम्ड हिम फॉर द कंडीशन. और सभी ने क्या बोला, जो एक्सट्रीमिस्ट कौन से, जो या तो इस एक तरफ या दूसरी तरफ, मतलब अगर आपने पार्टीशन कर दिया तो इंडिया में एक भी मुस्लिम नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान में एक भी हिंदू नहीं होना चाहिए, ऐसे एक्सट्रीमिस्ट दोनों कंट्रीज में थे. तो उन्होंने क्या ब्लेम किया कि महात्मा गांधी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस होल सिचुएशन. Despite this, he continued to meet everyone during his prayer meeting. But उन्होंने फिर भी नहीं सुनी और वो कंटिन्यूसली लोगों से मीटिंग करते रहे regarding the peace. And Nathuram Godse, finally, on 30 January 1948, one such extremist, Nathuram Vinayak Godse, walked up to Gandhiji during his evening prayer in Delhi and fired 3 bullets at him, killed him instantly. और ऐसे एक पर्सन थे नाथुराम गोडसे, एक्सट्रीमिस्ट, जिन्होंने 30 Jan 1948 को महात्मा गांधी को क्या कर दिया, फायर्ड किया. He fired 3 bullets and just because of that Mahatma Gandhi was killed instantly. Thus ended our lifelong struggle for truth, non-violence, justice and tolerance. और उसके साथ ही कहीं ना कहीं ट्रुथ का, नॉन वायलेंस का, जस्टिस का और टॉलरेंस का जो हम स्ट्रगल करते आ रहे थे उसका भी एंड हो गया. So this was the context of Mahatma Gandhi regarding the Pakistan, regarding the religious aspects of the people. So there are here are some also cuttings of the newspaper, right? They are trying to show in which manner the partition has taken place. All these kind of things are mentioned here. The news of Gandhiji assassination drew a crowd. This is the picture after the assassination of Mahatma Gandhi. So here is a context given. Let us research. यहाँ पे क्या given है आपको? Shweta noticed that her Nana
would get very quiet whenever anyone mentioned Pakistan. यहाँ पर कोई स्टोरी मेंशन है जिसमें श्वेता क्या देखती है कि उसके नाना जी हमेशा क्वाइट हो जाते हैं जब भी कोई ये बोलता है, पाकिस्तान का नाम उनके सामने आता है. एंड वन डे शी डिसाइडेड टू आस्क हिम अबाउट इट. और एक दिन वो क्या सोचती कि उनसे पूछ ही ले कि क्या हुआ था. हर नाना टोल्ड हर अबाउट हाउ ही मूव्ड फ्रॉम लाहौर टू लुधियाना ड्यूरिंग पार्टीशन. और उनके नाना ने उनको क्या बताया कि वो पाकिस्तान से लाहौर से लुधियाना में पार्टीशन के बाद कैसे शिफ्ट हुए थे. Both his parents were killed, as we also have studied in the last part that there were mass killing. Even he could not have survived, but our neighboring Muslim family gave him shelter and kept him hiding for several days. वो भी सरवाइव नहीं कर पाते अगर उनके किसी एक मुस्लिम लेबर ने उनको शेल्टर नहीं दिया होता. They helped him find some relatives and that is how he managed to cross the border and start a new life. और उनके जो नेबर थे उन्होंने किसी तरीके से मैनेज किया, उनके किसी रिलेटिव से रिलेशन एस्टेब्लिश किया और उसके बाद उनको एक नई लाइफ प्रोवाइड करवाई. So here it is asked from you, have you heard a similar story? Ask your grandparents or anyone to that of that generation about the memories of Independence Day, about the celebration, about the trauma of partition, about the expectation they had from independence, and write down at least 2 or 3 stories. It means what you will have to do, you will have to ask from your parents, grandparents, the stories related to partition of our country, and you will be able to feel, because if they have seen the partition problem, so they will be able to tell you everything whatever they have felt, and you will be able to visualize the situation of that time. Now we are going to study the integration of princely states. अब देखो, अब क्या रीड करना है कि जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, इंडिया का पार्टीशन हुआ, प्रिंसली स्टेट्स आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट क्लासेस आल्सो कि प्रिंसली स्टेट्स कौन से पार्ट थे, विच वर कंट्रोल्ड बाय द सम प्रिंसेस और सम किंग्स ऑफ इंडिया, बिकॉज देयर वर सम ब्रिटिश provinces and these are princely states. So what is the meaning of princely states? The parts which were controlled by any king, any prince of India. Although the overall supremacy was of the Britishers, complete supremacy तो Britishers की थी, but फिर भी जो रूलर्स कहीं ना कहीं नाम के इंडियंस बैठे थे, ये थे आपके प्रिंसली स्टेट्स. अब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो जो इनको इंटीग्रेट करने का वक्त था, हाउ वी हैव डन इट. So now let us have a look on it. British India was divided into what were called the British Indian provinces and the princely states. अब देखो, इंडिया 2 पार्ट्स में कैटेगराइज था. एक पार्ट था प्रोविंसेस और एक पार्ट था प्रिंसली स्टेट्स. अब ब्रिटिश प्रोविंसेस मींस दैट एरिया व्हिच वाज डायरेक्टली इन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स, और प्रिंसली स्टेट्स जिनके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल इंडियंस का था बट सुपरमेसी वाज ऑफ द ब्रिटिशर्स. ऐसे डिवाइड था पूरा का पूरा इंडिया. द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. On the other hand, several large and small states ruled by princes, called the princely states, enjoyed some form of control over their internal affairs as long as they accepted British supremacy. Here also the same thing is explained कि ब्रिटिश प्रोविंसेस तो वो थे जो डायरेक्ट ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, बट प्रिंसली स्टेट्स कौन से होंगे, जिनको कुछ फ्रीडम थी इंटरनल मैटर्स में अपने रिलेशन को मेंटेन करने की, कुछ फ्रीडम थी इंटरनल एस्पेक्ट्स में, बट इवन देन सुपरमेसी दैट वाज ऑफ द ब्रिटिशर्स. This was called paramountcy of sovereignty of the British Crown. और ये क्या था, ब्रिटिश क्राउन की सुपरमेसी, यानी ब्रिटिश मोनार्क की सुपरमेसी. And princely states covered one third of the land area of the British Indian Empire, and 1 out of 4 Indians live under princely rule. और देखो, प्रिंसली स्टेट्स क्या थे, कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड. जो हमारी मान लिया टोटल एरिया अगर 100% था तो उसके 1/3 पार्ट पे प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे. इट मींस 33% एरिया वाज कवर्ड बाय द प्रिंसली स्टेट्स, राइट. एंड 1 out of 4 इंडियंस लिव्ड अंडर द प्रिंसली रूल. और हर एक 4 में से एक इंडियन आपको प्रिंसली स्टेट्स में रहता हुआ मिलेगा. ये थी सिचुएशन. मतलब अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा कि कुछ सिचुएशन, हमारी कंट्री ऐसे डिवाइडेड थी
कुछ पार्ट जो क्या थे अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स डायरेक्टली, उनको आपने क्या बोला, आपने उनको बोला प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रोविंसेस। अब कुछ पार्ट ऐसे थे जिसमें लोगों को कुछ कुछ लेवल तक इंटरनल फ्रीडम थी, बट जो फाइनल सुपरमेसी थी वो ब्रिटिशर्स की थी, राइट। तो अब क्या था कि जो सिचुएशन कैसी थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो कितने पार्ट पर एक्सपेंडेड थे, 1/3 पार्ट पे, और हर एक 4 में से एक इंडियन हमारे प्रिंसली रूल के अंडर था। तो अब जब इंडिया इंडिपेंडेंस गेन करेगा तो अब ये छोटी 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 बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स बन जाएंगी। और जो प्रॉब्लम थी, अब वो प्रॉब्लम ये थी कि इन छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स को बना के मिला के एक यूनाइट इंडिया बनाना था। लेकिन प्रॉब्लम क्यों होगी, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं दे वर एंजॉयिंग सम काइंड ऑफ फ्रीडम, राइट। वो कुछ एंजॉय फ्रीडम कर पा रहे थे, कुछ फ्रीडम एंजॉय कर पा रहे थे। तो अब क्या था, अगर उस फ्रीडम को वो एंजॉय कर रहे थे और अब अगर ब्रिटिशर्स तो इंडिया से चले गए, अब अगर इंडिया में उनको इंक्लूड होना है तो सुपरमेसी इंडियन गवर्नमेंट की होगी, और दे वर ऑल्सो हैविंग सम काइंड ऑफ फ्रीडम इन देयर ओन एरियाज, इसलिए वो एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं कि वो इंडिया में इंक्लूड होने की, मतलब वो मानेंगे नहीं उस चीज को। सो दिस वॉज द प्रॉब्लम कि अब इंटीग्रेशन कैसे होगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या थी, just before independence it was announced by the Britishers with the end of their rule over India, paramountcy of the British crown over princely state would also lapse। अब देखो ब्रिटिशर्स गए ना कंट्री से, वो कहीं ना कहीं इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करके गए, एक तो पार्टीशन करवा के जाते जाते, अलोंग विद दैट उन्होंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर दी कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके ऊपर जो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी थी, सुपरमेसी थी, वो भी अब खत्म हो जाएगी। तो अब इसका मतलब क्या होगा, दिस मींट दैट ऑल दी स्टेट्स एज मैनी एज 565 इन ऑल वुड बिकम लीगली इंडिपेंडेंट। और अब क्या होगा कि अगर ब्रिटिश और सुपरमेसी तो खत्म हो गई, तो अब ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे जिनकी स्ट्रेंथ थी, जिनका नंबर था हमारी कंट्री में 565, तो अब ये 565 क्या होंगे, अब ये लीगली इंडिपेंडेंट पार्ट बन गए। अब देखो इनके किंग्स या फिर प्रिंसेस जो होंगे उनके माइंड में क्या आएगा, दैट नाउ वी ऑल आर इंडिपेंडेंट एंड वी कैन रूल अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर्स, अकॉर्डिंग टू आवर एस्पिरेशंस। The British government took the view that all these states were free to join either India or Pakistan or remain independent if they so wished। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि उन्होंने इन प्रिंसली स्टेट्स को फ्रीडम दे दी। फ्रीडम क्या थी, या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लो या आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, और या फिर अगर आपकी विश है, आप चाह रहे हो कि आप किसी में भी इंक्लूड नहीं होना चाह रहे, तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। और यहीं से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अराइज हुई, क्योंकि बहुत से प्रिंसली स्टेट्स वो सोचेंगे कि हमें तो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, हम क्यों किसी की सुपरमेसी को एक्सेप्ट करें, यहीं से प्रॉब्लम अराइज होगी। After that, this decision was left not to the people but to the princely rulers of the state। और अब उनको इंडिपेंडेंट रहना है, उनको इंडिया के साथ मिक्स होना है, उनको पाकिस्तान के साथ मर्ज होना है। तो अब इसका डिसीजन क्या था, अब इसका डिसीजन सिंपल कॉमन पीपल नहीं ले सकते थे। द डिसीजन वॉज टू बी टेकन बाय द रूलर्स ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट्स। और रूलर्स क्या चाहेंगे, दे विल, यू कैन से दे विल डिजायर फॉर देयर फ्रीडम्स ओनली, वो चाहेंगे कि उनको ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम मिल जाए। So this was a very serious problem and could threaten the very existence of a united India। तो ये क्या थी, एक सीरियस प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और इसने क्या कर दिया, हमारी कंट्री का जो आइडिया था, यूनाइटेड इंडिया था, उस आइडिया के अंदर थ्रेट जनरेट कर दी। यानी कि एक तो हमारा माइंड क्या चल रहा था, हमारा गोल क्या था कि हम इन छोटे छोटे प्लेसेस को मिला के हम एक यूनाइटेड इंडिया बनाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि इन 565 प्लेसेस को इंडिपेंडेंस दे दी गई कि आप चाहे तो इंडिया में मर्ज हो जाओ, चाहे पाकिस्तान में मर्ज हो जाए, या फिर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रूल करो। और उससे भी बड़ा डिसीजन क्या था कि वो पार्ट इंडिया में इंक्लूड होंगे, पाकिस्तान में इंक्लूड होंगे, या फिर इंडिपेंडेंट रहेंगे, उसका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ उन प्रिंसेस या किंग्स को लेना था जो प्रिंसली स्टेट्स को कवर कर रहे थे, उनको रूल कर रहे थे। तो अब देखो इसके बाद फिर क्या हुआ, द प्रॉब्लम स्टार्टेड वेरी सून, और जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आएगी ही। फर्स्ट ऑफ ऑल द रूलर ऑफ त्रावणकोर अनाउंस दैट द स्टेट हैड डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस। अब त्रावणकोर के रूलर ने क्या बोला, अब देखो सभी लोग ये चाहेंगे कि हम इंडिपेंडेंट रहे,
इसलिए सबसे पहले त्रावणकोर के जो रूलर थे उन्होंने क्या अनाउंस किया कि हमारा स्टेट इंडिपेंडेंट रहेगा, मतलब हम ना इंडिया का पार्ट बनेंगे ना हम पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे। द निजाम, वी आर कमिंग ऑन द मैप अगेन, द निजाम ऑफ हैदराबाद मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट द नेक्स्ट डे। और सेम जो हैदराबाद के रूलर थे जिनको निजाम टाइटल होता था, उनका निजाम यूज होता था टाइटल इन द फॉर्म ऑफ टाइटल, उन्होंने भी क्या बोला, दे ऑल्सो हैव डन द सेम अनाउंसमेंट। Rulers like the Nawab of Bhopal were adverse to join the Constituent Assembly. This response of the rulers of the princely state meant this after independence, there was a very real possibility that India would get further divided into a number of small countries. और अब क्या हुआ कि अगर ऐसे ही डिसीजंस आते रहते, छोटे छोटे स्टेट्स ये बोलते कि हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो अब प्रॉब्लम क्या थी, अब ये प्रॉब्लम थी कि अगर उस प्रॉब्लम को टैकल नहीं किया तो बहुत जल्दी, अभी तो सिर्फ एक पाकिस्तान बना था, बट अभी प्रॉब्लम क्या होगी कि विद इन द इंटरवल ऑफ सम टाइम इंडिया में बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज बन जाएंगी, 565 पार्ट हो जाएंगे इंडिया के, अगर उस प्रॉब्लम को टैकल नहीं किया गया तो। द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी फॉर द पीपल इन दिस स्टेट्स ऑल्सो लुक्ड ब्लैक। और इन एरियाज में जो डेमोक्रेसी थी, वो आइडिया, वो पर्सपेक्टिव कहीं दिखाई ही नहीं। This was a strange situation since the Indian independence was aimed at unity, self-determination as well as democracy. लेकिन यहाँ तो आपको कोई डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट दिखे ही नहीं, बल्कि हम लोगों ने क्या सोचा था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो हम कंप्लीटली क्या लाएंगे कंट्री में, यूनिटी लेके आएंगे, सेल्फ डिटर्मिनेशन लाएंगे और डेमोक्रेसी भी लाएंगे, बट यहाँ तो वो कोई भी चीज विजिबल नहीं हो रही थी। In most of these princely state government were run in a non-democratic manner and the rulers were unwilling to give democratic rights to their population. और यहाँ पे रूल कैसे चल रहा था, नॉन डेमोक्रेटिक मैनर में, क्योंकि इन लोगों के माइंड में क्या था, सिर्फ दैट हाउ कैन दे सेव देयर फ्रीडम, हाउ कैन दे सेव देयर अथॉरिटी, वही इनके माइंड में चल रहा था। और इसीलिए क्या हुआ फिर, इन लोगों ने डेमोक्रेटिक राइट दिए नहीं पॉपुलेशन को, राइट। सो नाउ कम ऑन द मैप अगेन, यहाँ पे जो आपको ये जो येलो वाला पार्ट है, दिस इज शोइंग ब्रिटिश इंडिया, और जो ये ब्लू वाला पार्ट है, दिस इज शोइंग प्रिंसली स्टेट्स। अब देखो, सोच के देखो, और जो ये आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, दीज आर एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, कि हमारा इंडिया कहां तक एक्सपेंडेड होगा। यू आर एबल टू सी the dotted line on the political boundaries of our country, right? और ब्रिटिश इंडिया, अब देखो ये कम पार्ट पे, जो प्रिंसली स्टेट्स है वो आपको बहुत ज्यादा पार्ट पे दिख रहे हैं। इट मीन्स अगर हमने कोई ऐसी कोई डील, ऐसा कोई हम लोगों ने सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं किया कि हम इनको, इस प्रॉब्लम को टैकल कर ले, तो इंडिया में इतने छोटे छोटे 565 कंट्रीज बन जानी थी। And just because of that, to form the unity of the country, it was very much required कि हम इस प्रॉब्लम को इस तरीके से डील करें कि इंडिया के और ज्यादा पार्ट्स ना हो। बट प्रॉब्लम वाज दैट कि इनके जो रूलर्स थे वो विलिंग थे ही नहीं इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। वो चाह रहे थे कि उनका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट रहे, ना वो पाकिस्तान के साथ जाए ना वो इंडिया के साथ जाए। इसीलिए अब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। आई थिंक टिल नाउ इट इज क्लियर टू यू कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या थी। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा कि पार्टीशन के बाद और तो प्रॉब्लम्स थी ही, कंट्री रिलीजियस बेस पे डिवाइड हो चुकी थी, पाकिस्तान की फॉर्मेशन हो चुकी थी, बट अगर आप इंडिया को भी कंसीडर करते हो, इंडिया में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि इंडिया 2 पार्ट्स में कैटेगराइज था। एक थे आपके प्रिंसली स्टेट्स और एक थे आपके प्रोविंसेस। जो प्रोविंसेस थे वो ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में डायरेक्टली थे, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उस पर कंट्रोल था इंडियन रूलर्स का, प्रिंसेस का, और फाइनल सुपरमेसी थी ब्रिटिशर्स की। अब ब्रिटिशर्स ने क्या अथॉरिटी दे दी उन प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को कि आपकी चॉइस है, आप इंडिया के साथ आओ, पाकिस्तान के साथ जाओ, या फिर आप इंडिपेंडेंट अपना नेशन बना लो। और अब इन लोगों ने इंडिपेंडेंट वाला आइडिया था उसको कहीं ना कहीं ज्यादा एक्सेप्ट कर लिया। और इसीलिए क्या होता है कि बहुत सारे स्टेट्स ने, बहुत सारी छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स ने ये बोल दिया दैट वी आर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट ओनली। और ये वो प्रॉब्लम थी जिसको टैकल करना बहुत ज्यादा जरूरी था टू सेव द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला था कि एक यूनाइट इंडिया हम बनाएंगे जिसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज होंगे। बट यहाँ जो
पिक्चर बन रही थी वो कैसी थी? अनडेमोक्रेटिक थी, राइट? जहां लोगों को राइट्स नहीं थे, जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स थे वो अपनी मर्जी चला रहे थे स्टेट्स के ऊपर, लोगों के पास कोई डेमोक्रेटिक राइट नहीं थे। तो अब ब्रिटिश जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट जो थी, उसके सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि इन छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स को आपको कंबाइन करके एक यूनाइट इंडिया कैसे बनाना है। तो अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए, गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी, दैट थिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट. I hope till now it is clear to you. Even then, if you are having any kind of doubt, you can ask your questions in comment section. Till then, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.